Hello everyone, welcome to the Weirdly Wired YouTube channel. Today we are going to discuss about JEE Mains 2021 paper which was held on 24th Feb in the morning shift, and I am Sumedh Deshkar, a first year undergraduate at IIT Kharagpur. So, we have given in the first question the n mole of a perfect gas undergoes a cyclic process ABCA consisting of the following processes. So, A to B is the isothermal expansion at a temperature T so that the volume is doubled from V1 to V2. So, as you can see from A to B, the volume is increasing from V1 to V2. You can see here and here the volume is V2, which is 2 times of V1 given. So, in this question, from B to C, isobaric compression is taking place at pressure P2. So here you can see the pressure is P2 and isobaric compression is taking place from V2 to V1. And in C2A, the isochoric change leading to change of pressure from P2 to P1. So here you can see the pressure is changing from P2 to P1 and the process is isochoric. मीन्स द वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो यही से हमें दिख रहा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भाई वर्क डन तो जीरो ही आना है C2A वाले प्रोसेस में. तो हमें ओवरऑल प्रोसेस का वर्क निकालना है तो हम क्या करते हैं, वर्क डन टोटल इज बेसिकली वर्क डन इन प्रोसेस ABCA, राइट. वर्क डन टोटल इज बेसिकली वर्क डन इन प्रोसेस ABCA. सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन इन प्रोसेस AB plus work done in process BC plus work done in process CA, correct? And you know work done in process CA is 0, so we need to calculate work done in process AB and BC. So first we will calculate work done in process AB. So work done in process AB is you see it's isothermal process, so we know the formula for the work done in isothermal process is nRT ln V final upon V initial. Here V final is V2, which is 2 times of V1, so I am just substituting the V2 upon V1 as 2V1 by V. So this will become nRT ln2, right, since V2 is equals to 2 times of V1. So this is our work done in process AB. And work done in process BC, which we need to calculate another. So here from B to C the pressure is constant. We know the basic definition of work is P dV integral. So work done is basically integral P dV from V initial to V final. And since the pressure is constant, which is P2 here, from B to C the pressure is P2. So PV, and also it's constant, so it will come out of integral, so P will become P2, and here integral dV will become V, and we need to substitute the limit from V initial to V final. And since the volume is decreasing from V2 to V1, it will become V1 minus V2, and since V2 is 2 times of V1, it will become minus P2 times of V1. Now we know that this process is isothermal from A to B. So the ideal gas equation here is P1V1 nRT, right, P1V1 nRT, and at B also the temperature is same because AB is isothermal process. Here we can also write P2V2 is equals to nRT, and here I can substitute V2 as 2 times of V1, so it will get P2 into V1 is equals to nRT, right. So I can substitute V2 as 2 times of V1, so I am bringing 2 on right hand side, so it will become nRT by 2. So P2 into V1 becomes nRT by 2. So here I can write minus nRT by 2, correct. So I just do this adjustment for matching it with the options form. So यहाँ आप देख रहे हो ऑप्शंस के फॉर्म में सिर्फ टेम्परेचर के टर्म्स में, तो मैंने P2V1 को टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया. सो यहाँ पे वर्क डन टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा वर्क डन इन प्रोसेस AB प्लस BC. नाउ वर्क डन इन प्रोसेस AB इज nRT ln2 and work done in process BC is minus nRT by 2. तो यहाँ से nRT कॉमन ले लो यार और सिंपल ln2 माइनस हाफ आपका आंसर हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 4 मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है, तो यस, ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 2, तो ये तो 5 सेकंड वाला क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। इसमें क्या ही पूछा है, द फोकल लेंथ एफ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर बाय द रिलेशन। हमें बेसिकली फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का एक कॉन्वेक्स मिरर का रिलेशन बताना है। बताओ, इससे आसान सवाल आपको जेईई मेंस में मिल सकता है क्या? बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में आया है, ठीक है, पेपर में। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो आपको पता है ऐसा, और एक साइड से सिल्वर्ड होता है, और जनरली कन्वेंशन के हिसाब से जैसे अपन मिरर रखते हैं उसमें हम राइट हैंड साइड को सिल्वर कर देते हैं उसके, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को। सो यहाँ से अगर रेज आएंगी तो वो बाहर की तरफ डाइवर्ज जाएंगी, है ना, डाइवर्ज हो जाएगी, फिर जिसके कारण उसका फोकस जो है कहीं राइट साइड में बनता है। और हम साइन कन्वेंशन से पोल का, ये पोल होता है ना अपना सेंटर वाला O 0, सो इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ऑफकोर्स अगर पैरेलल लाइन्स आ रही है वो अगर रिफ्लेक्ट करके किसी एक पॉइंट पे मिल रही होगी वो ऑफकोर्स पॉजिटिव साइड पे आएगा, क्योंकि अपन कॉन्वेक्स मिरर वाला केस ले रहे हैं। ऑफकोर्स वो पॉइंट इमेजिनरी होगा। तो F इज इक्वल्स टू फोकस जो होता है अपने को पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R है तो डिवाइड बाय 2। तो पे गलती यही होती है कि लोग -r/2 मार देंगे जल्दी में। कॉन्वेक्स मिरर बोला है और स्फेरिकल बोला है, ये ध्यान में रखना। सो कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव साइन आपको लगाना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस पढ़ने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट लग रहा है। In his Young's double slit experiment, the width of one of the slit is 3 times the other slit. Okay, so Young's double slit experiment में हमें पता है 2 slits होती है, ठीक है। तो ये जो स्लिट है इसकी विड्थ है d और दूसरी जो स्लिट है उसकी विड्थ है 3d, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, द विड्थ ऑफ द वन ऑफ द स्लिट इज 3 times द अदर स्लिट। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट, जो भी एम्पलीट्यूड आ रहा होगा लाइट का वो स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा लाइट का आने वाला वो स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, k टाइम्स ऑफ d। सो अगर मैं मानूँ यहाँ पे एम्पलीट्यूड a है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है। हमें आगे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। सो अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी I1 मानूँ और यहाँ पे इंटेंसिटी I2 मानूँ तो हमें पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो होती है √I1 प्लस I2 का स्क्वायर, ठीक है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। एंड मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है वो होती है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ डिटेल में आपको फटाक से। सो देखो, इंटेंसिटी नेट जो होती है दोनों सोर्स के कारण स्क्रीन के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे जब वो वेव्स आएंगी और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी तो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो होगी √I1 प्लस √I2 वेट ए मिनट, सॉरी, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √I1 √I2 cos psi। और psi जो है ये आपका होता है फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos psi की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंड मिनिमम कब होगा जब cos psi की वैल्यू हो जाएगी -1। तो उस केस में ये I1 प्लस I2 टू √I1 I2 बनेगा मैक्सिमम के केस में, तो वो बन जाएगा √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। एंड मिनिमम के केस में ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos साइन -1 बन जाएगा, उसके कारण ये √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर बनेगा। ये फॉर्मूला कैसा है आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। तो अभी अपने को I1 I2 नहीं पता है बेसिकली, है ना। सो I1 I2 अपने को निकाला। हमें एक रिलेशन पता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो मैं कांस्टेंट कोई भी ले लेता हूँ अल्फा, और अपने को कंसेप्ट यही ध्यान में रखना है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इफ ए इज एम्पलीट्यूड सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो अगर इंटेंसिटी ए है अपनी, तो जब इंटेंसिटी ए है तो अपना एम्पलीट्यूड I1 हो गया। सो जब अपना इंटेंसिटी 3 है तो अपना एम्पलीट्यूड हो जाएगा I2, करेक्ट।
तो अपना एम्पलीट्यूड हो जाएगा I2. सो I2 इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ 9a². अब बस I1 की वैल्यू बताए, I2 की वैल्यू बताए, आई मैक्स आई मिनिमम का रेशियो निकाल लेंगे. सो यहाँ पे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो आएगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, उनका रेशियो अगर मैं निकालूँ तो आएगा √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर. करेक्ट. सो नाउ दिस विल बिकम √I1 विल बिकम, सो I1 हमें पता है अल्फा a² है, सो इट विल बिकम √α a प्लस I2 क्या है, 9α² है, सो ये बन जाएगा √9α a² है. ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्फा 3, लेट मी राइट इट हियर, जगह कम पड़ रही है. सो दिस रेशियो विल बिकम, यह बन जाएगा √α a प्लस यह बन जाएगा 3 √α a, क्योंकि I2 जो है वो 9α a² है. ठीक है ना, उसका स्क्वायर अपॉन यहाँ ये बन जाएगा √α a माइनस 3 √α a. ठीक है, होल स्क्वायर ये. ठीक है, होल स्क्वायर में तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से वो कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा तुम्हारा 4 अपॉन नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर. सो इवेंचुअली 4 ही बनना है, तो 4:1 जो आएगा वो तुम्हारा रेशो आएगा. ठीक है, सो योर रेशो इज 4:1. सिंपल, कुछ नहीं, मैथ्स था यार, सिंपल बेसिक मैथ्स. तुम्हें बस ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्या होता है आई मैक्स आई मिनिमम, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में जो रेशो होता है वो पता होना चाहिए. बाकी तो क्वेश्चन पढ़ के चीज़ें हो रही है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था. ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गिवन in this question 2 stars. So there are 2 stars, suppose this is 1 star and this is another star, and the stars are having masses m and 2m. So 2 stars are having masses m and 2m at a distance d, rotate about their common center of mass in free space the period of the revolution. हमें period of revolution which is time period निकालना है. So start करते हैं. Basically वो revolve कर रहे हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, है ना. तो एक दूसरे के कारण उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण उनके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है जो उन्हें सर्कुलर मोशन में ला रहा है. ठीक है, जो उन दोनों को सर्कुलर मोशन में ला रहा है. वो एक दूसरे के अपोजिट में घूम रहे हैं, और वो जब घूम रहे हैं वो अपने सेंटर ऑफ मास के, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं. ठीक है, अब कॉमन सेंटर ऑफ मास जो है ऑफकोर्स उन दोनों की जो लाइन पास हो रही है उस पर लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों के सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन पे ही अपना कॉमन सेंटर ऑफ मास भी लाई करेगा. एंड उस कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पे एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. सो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा. तो मैं अगर इस पॉइंट का रेफरेंस मानूँ मास m को, ठीक है, इसको मैं ओरिजिन मानूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर होगी वो क्या होगी. सो उसका पोजीशन वेक्टर कुछ r है सेंटर ऑफ मास का. अगर m को मैंने रेफरेंस माना तो फॉर्मूला लगाएंगे सेंटर ऑफ मास का, विच इज m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 वाला. तो यहाँ पे r1 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि m जो है वो खुद ओरिजिन पे, और m2 का वैल्यू विच इज़ m2 इज़ 2m, अपने को दूसरा मास जो दिया है वो 2m दिया है. एंड यहाँ पे मैंने बेसिकली RCM वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ. यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको शायद कंफ्यूज करे, बट बेसिक फॉर्मूला ये मैं सिंपल फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है. और यहाँ पे मैं रेफरेंस मान रहा हूँ इस m को. ठीक है, इस m को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ छोटे. सो 2m वाला मास जो है वो कुछ डिस्टेंस d पे है. हमें क्वेश्चन में d डिस्टेंस दिया हुआ है, एट ए डिस्टेंस d, 2m मास इज ए डिस्टेंस d. सो यहाँ पे 2m मास का डिस्टेंस d हो जाएगा ओरिजिन से, जो कि अपन ने स्मॉल m माना. एंड नेट मास नीचे लिखते हैं अपन m1 प्लस m2. सो यहाँ पे नेट मास बन जाएगा 3m. सो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ गया 2d/3 फॉर m.
सो m से 2d/3 पे ऑफकोर्स m से दूरी होगा क्योंकि 2m वाले मास के पास में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, कॉमन सेंस से भी बता सकते। सो यहाँ पे अपने को पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब ओमेगा चाहिए। अब ओमेगा आता कौन से इक्वेशन में है भाई? ओमेगा आता है सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन में, Fc = m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब तुमको कहोगे यार ओमेगा तो V = ओमेगा r भी होता है, तो ये कोई सेंस नहीं बनती यहाँ पे, है ना, इस इक्वेशन की। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हमें दिया नहीं है, हमें सेंट्रीपिटल, हमें घूम रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो रोटेट कर रहा है, तो हमें रोटेट क्यों कर रहा है ये पता करना होगा। रोटेट क्यों कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स के, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स से चीज़ें रिलेट कर रहे हैं, तो अपने को ये वाली इक्वेशन लगानी ही होगी, है ना। ये सारी चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे जो लग रहा है वो है Fc = m ओमेगा स्क्वायर r। एंड मैं अगर m के ऊपर स्टडी करूँ, ठीक है, मैं अभी m की स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है 2m के कारण, ठीक है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है यहाँ, ये r है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये उसकी रेडियस हो जाएगी क्योंकि वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, जो कि इससे r डिस्टेंस पे है। सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज g m1 m2/r²। सो m and 2m/r², उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है d, तो ये नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सो यहाँ पे d का स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि यहाँ पे मैंने m क्यों लिया? क्योंकि मैं सिर्फ m के ऊपर अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखा हूँ। यहाँ पे r का वैल्यू क्या है? 2d/3। कन्फ्यूज मत होना, ये r का वैल्यू लेते समय और यहाँ पे d का ये वाला डिस्टेंस रखते समय कन्फ्यूज। यहाँ पे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल रहे हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे अपन रेडियस लिख रहे हैं, जिस सर्कल में रोटेट कर रहे हैं दोनों, तो ये जो है ये इस सर्कल में रेडियस रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस ये है, ठीक है, r। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे रेडियस रखना पड़ा, ठीक है, 2d/3। सो बस अभी यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे आपको नोट्स देने वाला हूँ, तो कैंसिल कुछ करूँगा नहीं, सिंपल बेसिक इसमें आपको करके दूंगा। सो आपका नेट आंसर जो आएगा वो आएगा, देखना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g टाइम्स ऑफ m 3gm/d³। सो हियर योर ओमेगा विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3gm/d³। एंड अपने को टाइम पीरियड निकालना है। सो 2π/ω होता है अपना टाइम पीरियड, ये सबको पता है। सो टाइम पीरियड विल बी 2π√d³/3gm। सो m is smaller, right? So 2π/3gm is our time period. So हो गया क्वेश्चन, सिंपल था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है करंट थ्रू ए वायर depends on time as I is equals to α0t plus beta t square. So basically करंट दिया है तुमको α0t plus beta t square। यहाँ पे करंट को चार्ज का फंक्शन बोल दिया है। सो एंड अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दी है, तो मैं सिंपल वैल्यू रख ही देता हूँ, तो फालतू। सो 20t α0 20 दिया और बीटा 8 दिया, तो 8t स्क्वायर। सो ये हो गया तुम्हारा करंट। अभी हमें निकालना है चार्ज यार। अब चार्ज क्या होता है हमें सिंपल पता है यार, I इज इक्वल्स टू dq/dt होता है। सो चार्ज क्या हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल I dt। अब सिंपल इसे इंटीग्रेट करना है यार, बेसिक चीज़ है। देखो 20t प्लस 8t स्क्वायर हमें करंट दिया है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। हमें फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू ए सेक्शन ऑफ वायर इन 15 सेकेंड्स। ये फर्स्ट 15 सेकंड होना चाहिए था, वो टाइपिंग एरर है, बट फर्स्ट 15 सेकंड में अपने को क्वेश्चन ने पूछा है। सो ये जो चार्ज अपन निकाल रहे हैं फर्स्ट 15 सेकंड वाला निकाल रहे हैं, तो इसलिए 0 to 15 तक इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। सो 0 to 15 तक जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, 20t प्लस 8t स्क्वायर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर अपन कैलकुलेट करते हैं। चलो अभी ठीक है। सो यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 20t² / 2 प्लस 8t³ / 3। यहाँ पे अपने को लिमिट्स डालनी है 0 से लेके 15 तक, ठीक है। तो ये तो 10t² बन गया। सो यहाँ पे अपन लिमिट्स डालते हैं अब। हाँ, सो लिमिट्स डालते हुए तो 0 0 तो 10 × 15 का स्क्वायर प्लस 8/3 × 15 का क्यूब।
इसे मैं 15 का स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 10 प्लस 8/3 इंटू 15 एंड नाउ दिस विल बिकम 5. सो 8 5 40 प्लस 10 50. सो 50 इंटू 15 का स्क्वायर अपने पास बचा. एंड यस, सो मैं भी इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 100 इंटू 225. 15 स्क्वायर इज 225. सो 225 0 अपॉन 0 अपॉन 2. सो 22500 का आधा करना है अपने को बेसिकली. सो इसका आधा कितना होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 0 5 एंड 0. सो 1250 इज आवर फाइनल आंसर. सो द चार्ज इज दिस. ओके, 11250, 11250. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन यार. मतलब जो बंदा जस्ट इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना स्टार्ट किया हो ना, फर्स्ट डे भी हो ना उसका चैप्टर का, वो बंदा भी सॉल्व करता है. मैं तो कहता हूँ उसकी भी जरूरत नहीं. जिसे सिंपल फॉर्मूला बता रहा है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, 10th के बच्चे को भी पता होगा, वो सॉल्व कर देगा जेई का क्वेश्चन. ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन अगेन. मतलब मैं कहूँ जेई 2021 में फिजिक्स में इन लोगों ने किया क्या है. काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन दी थी. देखो इस क्वेश्चन में सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग द मासेस m एंड रेडियस आर रिपोर्टेड एज I1, I2, I3 एंड I4. सो I1 तुम्हें पता है क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग अबाउट इट्स डायमीटर. सो I1 क्या होगा ये मेरे को बता दो सबसे पहले. अब थिन रिंग है, उसके डायमीटर के अबाउट सिंपल अपने को जेड एक्सिस के अबाउट पता है. अब डायमीटर के अबाउट निकालना है, डायमीटर जो भी होगा उसके अबाउट. तो डायमीटर सेंटर से ही पास कर रहे हो और अपने को जेड एक्सिस के थ्रू पता, अगर ये जेड है, ये वाई है और ये एक्स है. सो डायमीटर के थ्रू जो होगा एक्स के अबाउट हो या वाई के अबाउट हो सेम ही होना है. तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड होता है, ये अपने को पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से. और आई जेड तो एम आर स्क्वायर है और आई एक्स और आई वाई सेम ही है ना. अब इस डायमीटर के अबाउट निकलो या उस डायमीटर के अबाउट निकलो, रिंग का तो सेम ही आना है भाई. तो आई एक्स और आई वाई सेम है तो मैं उनको आई मान लेता हूँ, कुछ आई एक्स और आई वाई को कुछ आई मान लेता हूँ. तो ये बन जाएगा 2i. सो आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, जो कि है आई एक्स, या फिर आप उसे आई वाई भी कह दो, या फिर कोई भी एंगल पे वो डायमीटर को सेम ही आना है. ठीक है, तो I1 का वैल्यू दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर विल बी I1 विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2. करेक्ट. नेक्स्ट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a circular disc about an axis perpendicular to a disc and going through the center. ये तो अपने को पता है perpendicular to disc and going to the center. रिंग का कितना होता है, उस डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना. डिस्क की बात चली. फिर I3 में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस. हमें ये भी पता है क्या होता है I3 इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सिलेंडर तो छोटी छोटी डिस्क से ही बना है. ये जो सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, इसमें छोटी छोटी डिस्क की लगी है, तो इसके थ्रू एक्सिस जाएंगे तो सेम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना. तो इसका भी एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2. फिर फोर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज I4. सो फोर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर. सो ये होता है सॉलिड स्फीयर, उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये अपने को पता है. सो 2/5 एम आर स्क्वायर ये हो गया. सो मैं थोड़े अच्छे से नहीं लिखी बट ठीक है, आपको सब याद है ये, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं लगा रहा. अब बेसिकली कंपेयर करना है. देखो I1, I2 और I3 सेम है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से कोई होगा. अब 2/5 बड़ा है और 2/5 एम आर स्क्वायर बड़ा है या एम आर स्क्वायर बाई 2 बड़ा है, आप बता दो यार. हमें पता है क्या बड़ा है, एम आर स्क्वायर बाई 2 बड़ा है ना, 0.5 वाला फैक्टर है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन. सो दिस इज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दिए, कौन सा सही है कौन सा फॉल्स है ये बताना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फोटॉन्स हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम हैव इक्वल वेवलेंथ. सो फोटॉन का जो मोमेंटम होता है ये सबको पता होता है, जो जेई का पेपर देने आता है. एवरेज स्टूडेंट भी, बिलो एवरेज को भी शायद पता हो कि द फोटॉन्स फोटॉन्स का जो मोमेंटम होता है वो होता है h by लैम्बडा, where lambda is wavelength of that photon. Okay, so momentum of photon, which is p, capital P. So momentum of photon is h by lambda p. So the two photons have linear momentum, equal linear momentum, have equal wavelength. So अगर h by lambda किसी एक फोटोन p1 का अगर दूसरे के मोमेंटम की इक्वल होगा
तो ऑफकोर्स है कि लैम्बडा उन दोनों का वेवलेंथ सेम होगा, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो इससे अपने दो ऑप्शन तो करेक्ट लग रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें तो स्टेटमेंट 1 को फॉल्स बोला है तो ये तो गया। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट 1 को फॉल्स बोला तो ये गया, ये भी गया, इसमें भी स्टेटमेंट 1 को फॉल्स बोला, तो दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं फिलहाल, बट देखते हैं आगे क्या होता है। फिर तो हाँ, यहाँ पे अपने को सेकंड स्टेटमेंट में बोला, इफ द लेंथ ऑफ द फोटोन इज डिक्रीज देन momentum and energy of photon will decrease. So if the wavelength of the photon is decreased, then of course the momentum will increase, right? अब मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, ये बोल रहा है डिक्रीज होगा, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन विल डिक्रीज, तो गलत स्टेटमेंट है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, जहाँ हमको बोल रहे हैं द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Moving to the 8th question. So 8th question में simple बोला है, in the figure a mass m is attached to a horizontal spring which is fixed on one side to a rigid support. A spring constant of spring k and the mass oscillates on the frictionless surface with a time period t and amplitude a. And the mass is in equilibrium position as shown in the figure. Another mass m is gently fixed upon it. The new amplitude of the oscillation will be. हमें new amplitude oscillation का पूछा है। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, कुछ नहीं है। जो छोटा m है उसको जेंटली प्लेस किया गया है कैपिटल M पे, जब वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था कैपिटल M उस पॉइंट पे, एंड ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा, तो जेंटली पुट किया है, मतलब मोमेंटम में ज़्यादा फर्क नहीं आया है और फिक्स कर दिया है उस पर, मतलब अब ओवरऑल मास जो है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m बन जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो अभी के सिनेरियो में टाइम पीरियड जो होगा वो अपन 2π√m/k लिखते थे ना, जब सिर्फ कैपिटल M था तो कैपिटल M लिख रहे थे क्योंकि स्प्रिंग को पहले कैपिटल M कनेक्टेड था, तो 2π√M/k अभी चल रहा था अब तक, बट उसको अभी फिक्स कर दिया अपन ने छोटे वाले m को, तो टाइम पीरियड कुछ नहीं बस एडजस्ट होके क्या बन चुका है 2π√m प्लस कैपिटल M/k, ये तुम्हारा टाइम पीरियड बन चुका है नया वाला। ठीक है, अब टाइम पीरियड होता है 2π/ω, सो ओमेगा ये तुम्हारा ओमेगा फाइनल वाला आ गया यहाँ से ना, टाइम पीरियड फाइनल नहीं है, ये टाइम पीरियड फाइनल है तो ओमेगा भी फाइनल वाला हो जाएगा। सो यहाँ से ओमेगा फाइनल का वैल्यू मेरे को ऐसे ही पता लग रहा है, वो है √k/m प्लस कैपिटल M, है ना। मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ इसको। अब बेसिकली अपने को करना क्या है, देखो हमें ये चीज़ बताई है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तब उस पर जेंटली पुट किया गया, इसका मतलब जेंटली पुट किया मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बोला है तो अपन मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं बेसिकली एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। Pf इज इक्वल्स टू P इनिशियल, P फाइनल इज इक्वल्स टू P इनिशियल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर अपन देखेंगे, मैं इसे सही से लिख देता हूँ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ताकि आप जब अगर इसे देखें वापस तो आपको चीज़ें समझे। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई, इनिशियल मोमेंटम क्या है कोई बता सकता है? इनिशियल मोमेंटम था कैपिटल M, मतलब जब रखा ही नहीं था वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे था, तो कैपिटल M इंटू उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी विच इज़ a इंटू ओमेगा इनिशियल, एंड P फाइनली M प्लस कैपिटल M, क्योंकि अब मास बढ़ चुका है और अभी भी वो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है तो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे ही होगा। सो उसका फाइनल वाला एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तो उसका फाइनल वाला एम्पलीट्यूड जो है वो मैं थोड़ा अपन इसको सेपरेट लिखते हैं इधर की तरफ, क्योंकि बड़ा इक्वेशन बनेगा वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, कंटिन्यूइंग दिस साइड P इनिशियल इज कैपिटल M इंटू ओमेगा इनिशियल इंटू A, सो एंड फाइनली मास जो हो रहा है कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो रहा है, एंड इंटू में ओमेगा फाइनल अपन ने कैलकुलेट किया है तो मैं सिर्फ सिंपल वैल्यू रखता हूँ √k/m प्लस m। सो ओमेगा फाइनल तो मैं पता है √k/स्मॉल m प्लस कैपिटल M, राइट, एंड दिस इज ओमेगा फाइनल एंड a फाइनल, सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी ये आ गई। अब हमें ओमेगा इनिशियल पता है √k/m होगा, ये तो पता है k/कैपिटल M, क्योंकि इनिशियली सिर्फ कैपिटल M था।
सो सब्स्टिट्यूट करते हैं यार ओमेगा इनिशियल की वैल्यू यहाँ पे, तो ओमेगा इनिशियल की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ यहाँ पे अंडर रूट के बाय कैपिटल एम। सो इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे रूट आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे रूट आएगा, अंडर रूट के चला गया। सो फाइनली ए फाइनल जो आया तुम्हारा वो आया अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ए, है ना। तो ये है तुम्हारा फाइनल मोमेंटम, सॉरी फाइनल एम्पलीट्यूड। सो फाइनल एम्पलीट्यूड जो तुम्हारा है ये, सो एम्पलीट्यूड तुम्हें नोट डाउन कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन। So yes, let's start. In the question number 11th, we are given the 4 identical particles of equal masses 1 kg made to move along the circumference of a circle, and the radius of the circle is 1 meter under the action of their own mutual gravitational attraction. The speed of the each particle which we need to calculate here. So हमें दिया है 4 पार्टिकल है, वो एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो चारों के चारों सिमेट्रिक हो गए, क्योंकि अगर कोई भी एक पार्टिकल किसी एक पार्टिकल से पास में या दूर जाता है तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण वो चारों एक सर्कल में सिमेट्रिकली रोटेट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो क्या आप चीज़ को? तो ऑफकोर्स अगर वो चारों एक सर्कल में घूम रहे हैं तो सिमेट्रिकली घूम रहे होंगे, चारों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और ऐसा कुछ सर्कल में चारों के चारों घूम रहे होंगे। ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी वो बताना है। ऑफ कोर्स सिमेट्रिकली मूव करेंगे, किसी की वेलोसिटी ज़्यादा कम नहीं हो सकती, सबकी सेम होगी, क्योंकि अगर किसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो उसके पास में चला जाएगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो और पास जाएंगे, इसके कारण ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कम हो जाएगा, तो ये थोड़ा दूर दूर जाने लग जाएगा और ये सर्कल में मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है, सबकी वेलोसिटी सेम होगी और सब सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं। सो वेलोसिटी कैलकुलेट कर, तो कोई भी एक पार्टिकल को अपन स्टडी कर लेते हैं, एंड उसके ऊपर सारा सब कुछ लिखते हैं कि कैसे कैसे उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एंड सर्कुलर मोशन वाला इक्वेशन लगा देंगे। मतलब अभी अगर मैं ये पार्टिकल ले लूँ जिसका मास 1 kg है, ठीक है, और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 1 मीटर, तो अगर इसके ऊपर मैं सारे फोर्सेस लिख दूँ और उसे एफ सेंट्रीपिटल की इक्वल कर दूँ, एफ सेंट्रीपिटल तो मेरे को पता है mv²/r होने वाला है, r तुम्हें दिया हुआ है, m भी तुम्हें पता है, मेरे को बस एफ सेंट्रीपिटल पता चल जाए इस पे का, मेरे को वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो अपने को बेसिकली निकालना अब है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण वही एक फोर्स है यहाँ पे जो लग रहा है, तो सबसे पहले तो ये 4 पार्टिकल्स हैं, ये सिमेट्रिकल है, तो एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ। तो ये जो ऊपर वाला फोर्स है, इसे मैं इसको अगर पार्टिकल 1 कहूँ, ये 2, ये 3 एंड ये 4, तो ये फोर्स F1 कह देता हूँ मैं, ये फोर्स F2 कह देता हूँ, और ये फोर्स F3। ठीक है, ये फोर्स F3। तो ये फोर्स ऑफकोर्स 45 डिग्री एंगल पे लग रहे होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, ये फोर्स 45 डिग्री एंगल पे लग रहा है, और ये फोर्स रेडियस के डायरेक्शन में लग रहा है F3 वाला। ठीक है, सो नाउ अपने को लिखना है एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, एफ नेट विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ F3, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है F1 F2 के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो नाउ द नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 का कॉस 45 प्लस F2 का कॉस 45 प्लस F3, समझे, प्लस F3। अब हमने बेसिकली इसके रेडियस के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट ले लिए और वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जाएंगे दोनों के। F1 तुम्हें पता है क्या होगा, gm²/r² इंटू कॉस 45। सो gm², m इज़ 1, सो आई एम राइटिंग 1² gm²/r²। सो व्हाट इज़ r?
So distance between them is basically, so this is 1 meter, this is 1 meter, and this distance will become √2. So I am writing the distance as √2, so it will be √2 का square, right, and into cos 45, and cos 45 will be 1 by √2. Similarly, F2 is as F2 cos 45 component will be as same as F1 cos 45, so I am just multiplying by 2, and बचा अब F3 तो हमें पता है gm² अपॉन r². r यहाँ पे 2 मीटर है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टिकल जो है और इसके बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, डायमीटर वाला है ना, रेडियस 1 है. तो यहाँ से अब कैलकुलेशन करनी है यार सीधी. तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो अपने को आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ g अपॉन 2. So this will become g by √2 actually. So this will become g by √2 plus this will become g by 4. Now this is fnet. अभी इस fnet को mv² by r के इक्वल कर देते हैं. अब m तुम्हें 1 दिया है, तो 1 इंटू v² अपॉन r. सेंटीमीटर फोर्स लिखा है मैंने जस्ट, रेडियस तुम्हें 1 बताया, mv² अपॉन r. ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी. अब वेलोसिटी तुम्हारी आ गई यहाँ से √g टाइम्स ऑफ 1 by √2 प्लस 1 by 4. एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं अपन, ठीक है. तो √ नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा g इंटू 2√2 प्लस 1, राइट. सो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा g इंटू √g इंटू 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड ओवर 2. ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है. सो अपना फाइनल आंसर ये आ गया. सो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. तो ये ऑप्शन में तो 2 रूट के अंदर है, इस ऑप्शन में भी 2 रूट के अंदर है, बट दोनों ऑप्शन सेम है ऐसा हो ही नहीं सकता. किसी एक ऑप्शन में 2 बाहर होगा रूट के, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट मान लो आप, ठीक है. प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पे, एक कोई से 2 बीच में, तो ये अपना करेक्ट आंसर ही है, ठीक है. ऑप्शंस गलत दिए, ठीक है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, AMB. व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो यार ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है. अब वेलोसिटी कुछ समय के लिए घट रही है लीनियरली और कुछ समय के लिए बढ़ रही है लीनियरली. ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है A. एक से मैं थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर लेता है, ठीक है. ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है B वाला, ठीक है. अब वेलोसिटी कुछ समय के लिए कम हो रही है. वेलोसिटी अगर लीनियरली कम हो रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो तुम्हें दी है v इज इक्वल्स टू समथिंग माइनस k टाइम्स ऑफ t. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है. k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव इसलिए मैंने माइनस k लिख दिया. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, तो माइनस k विल बी द एक्सेलरेशन. तो अगर k पॉजिटिव कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, अच्छा ये v इज इक्वल्स टू माइनस टी कब तक है, a टू m तक का सीन है ना. ये वाला ग्राफ जो है a टू m तक का आप देख सकते होंगे, ये एक निगेटिव स्लोप वाली लाइन है, इसलिए माइनस के टी लिखा, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. तो a से लेके m तक तो एक निगेटिव नंबर है एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज निगेटिव नंबर बेसिकली विच इज़ माइनस k, राइट. एंड दिस इज m पॉइंट एंड दिस इज a पॉइंट, ओके. उसके बाद दिस इज m पॉइंट एंड दिस इज a पॉइंट. एंड उसके बाद फ्रॉम m टू b अगर आप देखोगे, m टू b अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू t. सो पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू t, क्योंकि पॉजिटिव में स्लोप है, देखो, ठीक. अब ये इसमें कुछ कांस्टेंट वगैरह आ सकता है, मैं उसे इग्नोर मार रहा हूँ, क्योंकि
देखिए आप एक्सेलरेशन जब निकाल रहे हो तो ऑफकोर्स डिलीट ही हो जा रहा है वो कांस्टेंट, सो उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखो कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम्स ऑफ टी वेलोसिटी आ रही है। तो यहाँ पे जब मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ तो उसका वैल्यू आ जा रहा है के, क्योंकि एक्सेलरेशन इज dv/dt। तो यहाँ से m से लेके b तक एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो m से लेके b तक एक्सेलरेशन की एक पॉजिटिव वैल्यू, तो इस काइंड का कुछ ग्राफ बनेगा। एंड वो ग्राफ मुझे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। सो यस, इस क्वेश्चन में अभी देखोगे तो 3 क्वेश्चन लगातार काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है टू इक्वल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटीज इन द टू केसेस विल बी। तो इस क्वेश्चन में दोनों केसेस लेना, एक बार सीरीज लगाया एक बार पैरेलल लगाया और दोनों इक्वल कैपेसिटेंस है। तो पहला केस है जिसमें बंदों ने C1 और C2, मतलब C1 C2 के दोनों सेम ही हैं, तो 2 C कैपेसिटर्स है, दोनों को पैरेलल में लगाया है। तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा इन केस ऑफ सीरीज विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अपने को जनरल फार्मूला पता है, तो C² अपॉन 2C इट विल बिकम C/2। ये जनरल फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि C इक्विवेलेंट इन सीरीज जो होता है वो होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, करेक्ट। एंड ये C1 C2 क्या है, कैपेसिटेंस होते हैं, दो सीरीज में कैपेसिटर लगाए उनके। एंड पैरेलल में दूसरे केस में लगाया है, तो C इक्विवेलेंट इन पैरेलल, उस केस में कुछ ऐसा लगाया होगा, 2 पैरेलल में कैपेसिटर्स लगा दिए हैं और इधर आपका रिमेनिंग सर्किट। सो पैरेलल में जो होता है वो ऐड ही हो जाता है इजीली, C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2C हो जाएगा। अब रेशो पूछा है तो हमें रेशो में लिखना होगा C इक्विवेलेंट इन सीरीज अपॉन C इक्विवेलेंट इन पैरेलल, C इक्विवेलेंट इन पैरेलल। तो अगर अपन रेशो कैलकुलेट करेंगे तो वो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, सीरीज टू पैरेलल का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? So yes, in this question, now if an emitter current is changed by 4 milliampere and the collector current is changed by 3.5 milliampere, the value of the beta will be। तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ बीटा पूछिए, हमें एमिटर करंट में जो चेंज हुआ है, एमिटर करंट में जो चेंज हुआ है और कलेक्टर करंट में जो चेंज हुआ है वो दिया है, हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मूले को भी, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ठीक है। सो हमें पता है एमिटर करंट इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ चेंज इन एमिटर करंट इज इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट प्लस चेंज इन IB। तो यहाँ से हमें पता है बीटा क्या होता है, IC अपॉन IB, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये बीटा होता है। तो यहाँ से हमें चेंज इन एमिटर करंट दिया है 4, तो कलेक्टर करंट में चेंज दिया 3.5, सो यहाँ से डेल्टा IB आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा IB अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आएगा, सो डेल्टा IB विल बी 0.5 एंड देन इफ यू कैलकुलेट बीटा फ्रॉम हियर, सो इट विल बी 3.5 अपॉन 0.5 बिकॉज डेल्टा IC इज 3.5 and delta IB is 0.5, it will become 7. So option number 1 is the correct here. काफ़ी इजी सवाल था, मतलब आपको सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए और ये फार्मूला याद होना चाहिए, काफ़ी बेसिक फार्मूले से आपको इजीली याद हो जाते हैं। In this question number 15, we need to match the list from 1 to 2। ये भी काफ़ी इजी सवाल है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ है, बोर्ड लेवल की चीज़ है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं और ये मेंस में आ रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है आपको पता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ऑफकोर्स ए का जो मैच होगा वो तुम्हारा ए का जो मैच होगा वो नंबर 2 के साथ आएगा। सो ए इज़ विथ 2 एंड
बी का जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर 3। सी का जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, सो दैट्स वाई एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है, हीट कंटेंट जो होता है कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। एंड डी में जिसमें आइसोबारिक है उसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो फर्स्ट। सो देखना ये कौन से इसमें मैच हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी ज़्यादा बेसिक सवाल है ये, ठीक है।